कभी ऐसा कोई डिसीजन लिया आपने जिसकी वजह से कोई डिज़ास्टर या बहुत ख़राब सिचुएशन आ गई, आपको लगा यार ये गड़बड़ हो गई मेरे से 10 साल में पिछले, सो द रिग्रेट बट सम डिसीजन जो कि गलत हो गया? Yeah. So I think there is nothing which has gone into a disaster which had to be changed, but there has been implementation of certain features and all that stuff. So usually when we were looking at, I think mid of the business somewhere in 2017, 18 or maybe 19, we decided we used to pay a certain amount of conveyance to a particular person who goes and collects the sample. अच्छा It used to be always a fixed amount अच्छा per booking, right? अच्छा And then we got into a software mode, and that software mode used to calculate the number of kilometers. So we moved to a kilometer model. ठीक है. अब वो kilometer model में बहुत सारे लोगों का वो amount cut हो गया. Reason being because they used to travel less, but the bookings used to be there as a nearby this thing. Then I started realizing a lot of people think that it is just the cost of running that kilometer, but they were actually paying EMIs for the rent, bike, also the maintenance of it. फिर उनको लगता था हम इतना चलाते हैं कि हमारी बाइक भी ख़राब हो जाएगी तो वो ज़ीरो हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, 3-4 साल बाद एंड ऑल दैट. सो दे हैड दिस पर्टिकुलर थिंग इन हिज हेड कि ये जो बच रहा है ये सब हम यूज़ कर लेंगे वहाँ. So that hit to them actually caused them this thing. So there was a lot of pushback, right? From your From the ground team. From the ground team, stating कि ये तो बहुत कम हो गया, इसको change करना है and all that. And we initially thought कि भाई ये तो मतलब it's like a some good union happening, wherein the new feature is not getting implemented and stuff like that. So then after 1.5 months, there are certain people who approached me. They told me. So I said the way you have approached this is not right. So they told their genuine problem. I could understand and all. And according to them, वो हम उस प्राइस पे तो वापस नहीं गए, बट हमने एक सेंटर प्राइस फिक्स किया. फिर प्राइस कम हुआ, बट एक सेंटर प्राइस फिक्स हुआ जहाँ पे वो भी खुश थे और हम भी खुश थे. अच्छा. बट आई जस्ट रियलाइज दैट one, the good part is that you should never bring your ego in कि मैंने फीचर बना दिया तो अब अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. Secondly, how connected you are to your ground team tells you the reality, right? So, and you're able to correct it before it creates any damage, right? So ultimately, this is some of these learnings wherein you sometimes do not take that decision right, or according to you it is right, but the person who's going to suffer with that, according to him, you have to understand the story. And then you have to also read between the whole lines कि ये genuine कितना है और ingenuine कितना है, and then take your calls. So अगर आप connected नहीं हो तो वो calls नहीं ले पाओगे. कभी कैश क्रंच जैसी सिचुएशंस आई? बहुत बार. कितनी बार? 4 बार. कितना कैश क्रंच? 1 महीने के पैसे, 2 महीने के पैसे. हाँ, क्या होता है उस टाइम? So imagine कर ही सकते होगे आप कि क्या होता है, but again depends upon how big you are. जितने ज़्यादा आप उतना डर. तो the first one came very early, about 6 months अच्छा. later only, Okay. wherein we decided आपकी क्या करना है. The second one came when we were dealing with some of the problems. We had one legal issue, we were dealing with that. और उसी के बीच में the funds were also ending up, so we had only 1 month, 2 months of a runway, but our existing guys supported us, so we sailed through. The third one definitely came later than that, which was 3-4 months of runway left, sort of a thing. These are timeline क्या इनकी? So timeline है probably 2015, then 2017, then last one was 2018, 19 के बाद से सही है. I think post COVID the things are. बट वो बिल्कुल एकदम 2 महीने का पैसा, 1 महीने का पैसा बचा है. हाँ, 2 महीने 3 महीने. एक टाइम पे तो 1 महीने का ही रह गया. माय गुडनेस. तो ये रात को सोते टाइम ऐसा नहीं होता यार मैं क्या प्रॉफिट वगैरह बना रहा था, ऐसे थॉट्स भी आते होंगे ना, कहाँ मैं घुस गया, गलती तो नहीं कर दी? सो ऐसा थॉट प्रोसेस तो नहीं आया, बिकॉज एट द बैक ऑफ द थिंग यू नो कि आप ठीक कर रहे हो, राइट? जब आपको अपने बिजनेस मॉडल पे यकीन नहीं होता तब ऐसे डाउट्स जरूर आते हैं. Okay. कि आर यू ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट. ठीक है. आई हैव ऑलवेज बीन इन अ ट्रैक वेयर इन आई रियलाइज दैट आई नो दिस स्पेस, आई नो इट विल गेट बिल्टेड अप. तो मेरा पहला फंड आया 12 बार रिजेक्शन के बाद, जिसमें बंदा बोलता है कि तुम्हारा बिजनेस ही ख़राब है, तुम जाओ. तो मैंने बोला मैं एक ऐसी डायग्नोस्टिक कंपनी बनाना चाहता हूँ, ना मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, ना कुछ D2C बनाऊँगा, और वो भी ऐसे स्पेस पे जिसके बारे में आपने भी बोला. करेक्ट. तो सब बोलते थे अरे भाई रहने दो, ये नहीं होगा. हाँ. डॉक्टर के बिना वैसे भी बिल्ड नहीं हो सकता, और इतनी बड़ी और कंपनी. ये कौन फाइटर थे? VCs बोलते थे. VCs ऑल दिस थिंग. ओके. तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 10-12 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. मैं बोला कोई तो फंड देगा नहीं, या तो अपने पैसे से चलाओ या बंद कर दो. तो आई गिव माई सेल्फ 3 months बिफोर आई रेज द फर्स्ट राउंड कि 3 महीने देखता हूँ, अगर नहीं हुआ इसमें तो फिर देन आई हैव टू पिवट चेंज. हो सकता है मैं ही गलत हूँ, राइट? ठीक है.
सो विद इन दैट 3 months से पहले द फर्स्ट फंड केम इन, देन वो बिल्ड किया। तो मैंने बोला एग्रीगेशन मॉडल वॉज नॉट वर्किंग आउट एंड ऑल दैट स्टफ। तो एग्रीगेशन करते करते वो फंड यूज़ हो रहा था एंड कुछ ही बचा था। एंड बिफोर दैट यू आर सेइंग कि आपको पैसे भी रेस करने हैं और आपको मॉडल भी चेंज करना है। तो पहले मॉडल चेंज करोगे या पहले पैसे रेस करोगे? तो मॉडल पहले चेंज किया, और अब क्या है, नया मॉडल के ऊपर आप कह रहे हो कि 1-2 महीने में कोई पैसे दे दे, तो वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। बट वेन यू नो कि वो मॉडल मैंने राइट रीजन से चेंज किया है, ऑलवेज आई न्यू एट द बैक ऑफ माई माइंड दैट आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, आई नो हाउ डज इट वर्क्स, राइट, एंड आई नो हाउ टू मेक इट वर्क। ओके, सो द मनी फॉलोड ऑल द टाइम। कितना बड़ा राउंड था वो वाला मॉडल चेंज करने के बाद वाला? About 1 crore. सेकंड राउंड? Yeah, seed round, which was a UBK round. It was about 1.5 crores, 1.25 crores. That was a round. ओके, Yeah. So 1.5 crore for us was like a 12 months, 15 months runway at that point of time. 15 months? Yeah. अच्छा, ठीक है। बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग,